Assalamu alaikum students. Let's begin with our today's another new topic, that is sentence completion techniques. Let's begin. Sentence completion techniques में आपको usually कोई sentence given होता है in which there may be one or two blanks and you need to fill those blanks or blank with the options available. Remember that sentence completion is about finding a word that best fits the context of your sentence. And that is a word that best suits the mood and tone of the sentence and retains the meaning of the sentence. हमेशा याद रखें कि जब भी आपने sentence completion को attempt करना हो तो आपने वो word find out करना है जो कि सबसे best fit हो जाए context में उस sentence के. कोई ऐसा word जो कि best suitable हो उस statement के mode, उसके tone पे, और मीनिंग भी साथ साथ रिटेन होनी चाहिए. दैट रिटेन्स द मीनिंग जो है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए. मीनिंग में डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए. द करेक्ट आंसर शुड रिटेन द सिंटैक्स, दैट इज लैंग्वेज रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंड बी कंपैटिबल विद द ग्रामेटिकल क्यूज ऑफ द सेंटेंस. तो जो आपका करेक्ट आंसर है उसमें न सिर्फ आपने लैंग्वेज रूल्स का, सेंटेंस स्ट्रक्चर का ख्याल करना है, बल्कि ये भी देखना है कि वो कंपैटिबल हो ग्रामेटिकल क्यूज से. सारे ग्रामेटिकल क्यूज, ग्रामेटिकल जो कि इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे कंपैटिबल होना चाहिए. And after reading a statement, before looking at the answer choices, think of a word or words you would insert, or of a word or words that fits the sentence, right? तो आंसर चॉइसेस देखने से पहले आपने खुद से अपने सेंस को जगाना है. अपने सेंस के लिहाज से देखना है कि यहाँ पे क्या वर्ड या क्या वर्ड्स इंसर्ट होने चाहिए इस सेंटेंस को फिट कर होने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फॉर्मेट that may be asked in your exam. Although it was not apparent at the time, in Dash we can see how Miles Davis performances in the 1970s were dashed by what was happening then in popular music. एक एग्जाम्पल है इस तरह के स्टेटमेंट. अब एक ब्लैंक भी हो सकता है, दो ब्लैंक्स भी हो सकते हैं. सो सी हियर, अब आपने देखना है कि क्या ऑप्शन करेक्ट है. रेट्रोस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट या मॉडिफाइड फैक्ट, और अनचेंज, फोरसाइट एंड endangered in time, or engendered. So now see, here one more thing is important, that you need to know the meaning of those words. अगर मीनिंग नहीं आते तो मीनिंग इन्फर कर लीजिए. फिर भी नहीं क्लियर हो रहा तो एटलीस्ट किसी एक ब्लैंक के बारे में आप परफेक्ट हो कि यहाँ पे ये बात बिल्कुल फिट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्लैंक 1 की बात करें तो इसमें अगर रेट्रोस्पेक्ट लगा के देखें, रेट्रोस्पेक्ट मींस क्या होता है? इट मींस a review of past, a survey of past events, यानी पास्ट के इवेंट्स को पे गौर करना, राइट? इन्फ्लुएंस की मीनिंग तो हमें पता है. ऐसी सेम इज द केस इफेक्ट एंड मॉडिफाइड फैक्ट एंड अनचेंज. फोरसाइट मतलब होता है एंटिसिपेशन यानी दूरअंदेशी. एंड इंडेंजर्ड मतलब होता है अ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन यानी किसी चीज को खतरा लाहक होना. इंडेंजर्ड, टाइम, और engendered means cause or give rise to some feeling. प्रोड्यूस करना, पैदा करना. engendered, right? So now एक एक ऑप्शन को फिट करके देंगे. लास्ट वाले से देखते हैं. Although it was not apparent at the time, in time, क्या ये ठीक लग रहा है? Obviously ठीक नहीं लग रहा. Were engendered, what was happening? So this is incorrect option. E को remove कर दें. D पे आए. Although it was not apparent at the time, in foresight, it was not. एक जगह कह रहा है it was not apparent और फिर कह रहा है in foresight. So is it possible? In anticipation, how we can see how Miles Davis performances in the 1970s were endangered by what was happening in the popular music. जी नहीं, this is not a correct context. Then C को देखें. Although it was not apparent at the time, in fact, we can see how Miles Davis performances in the 1970s were unchanged by what was happening then. Were unchanged by what was. This is not possible again.
राइट, कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं फिट हो रहा, मीनिंग भी साथ साथ देखनी है. Although it was not apparent at the time, in effect, and what effect? We can see how Miles Davis' performance, again, this is disturbing, were modified by what was happening. So this is not, in fact, suitable. Last one देखें, option A, retrospect or influence. It was not apparent at the time in retrospect. Yani, if we review past events, we can see how Miles Davis' performances in the 1970s were influenced by what was happening then in the popular music. This choice best suits the mood and the tone of a sentence. Correct? So this is the correct choice. Option A. Option A is the correct one. Right? Next. अब हम मजीद टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि एसेंशियल हैं, जो कि ज़रूरी हैं सेंटेंस कंप्लीशन को समझने के लिए. Now be alert to transitional words. Some words are known as transitional words. वो words जो कि आपको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है. They may be contrast or support indicators. And what are contrast indicators? So look for signal words connecting contrasting ideas. Right? हमेशा सेंटेंस में फाइंड आउट करो उन सिग्नल वर्ड्स को जो कि कनेक्ट कर रहे हैं कंट्रास्टिंग आइडियाज को. कंट्रास्टिंग यानी दो मुख्तलिफ आइडियाज को. योर आंसर चॉइसेस शुड रिफ्लेक्ट अ वर्ड डायरेक्टली ऑपोजिट टू द सिग्नल वर्ड. तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा? ऐसे सेंटेंस में आपकी जो आंसर चॉइस होगी वो वर्ड होगा जो कि सिग्नल वर्ड का ऑपोजिट होगा. इफ देयर आर टू ब्लैंक्स देन ट्राई टू जीरो इन. अगर आपके पास सामने दो ब्लैंक्स हैं तो फिर सबसे पहले तो उसको जीरो इन कर दें ऑन दैट चॉइस दैट कैरीज वन पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव वर्ड. क्या सेलेक्ट करके? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को सेलेक्ट करके. राइट, इट इज फॉर कंट्रास्ट इंडिकेटर्स. याद रखें कंट्रास्ट वाले सेंटेंसेस जो होंगे ना उसमें ये काम होगा. सम सिग्नल वर्ड्स आर हाउएवर. अब देखो कुछ सिग्नल वर्ड्स जैसे कि हाउएवर है, ऑल्दो है, ऑन द अदर हैंड, बट, इंस्टेड, डिस्पाइट, रिगार्डलेस, rather than, nevertheless, in contrast, whereas, and except. ये कुछ contrast indicators हैं. Now see, an example, can public opinion be influenced so that it dash rather than encourages the proliferation of the sale of firearms? Now again see, here we have rather than. So this is what you call a signal word, right? Contrast indicator है ना ये, right? So इसके बाद क्या वर्ड है? encourages. ठीक है, तो अब इस encourages का आपने क्या करना है? इसका ऑपोजिट फाइंड आउट करो क्या है. What is the opposite of this encourages? It should be discourages. अब discourages के मीनिंग का देखो, कोई यहाँ पे सिनोनिम यूज हो रहा है. readables, no. impedes. encourage करना और discourage करना यानी impede करना. that is a probable word. आगे भी पढ़ लेते हैं. advances, no. amplifies, no. inverts, no. So we got a correct option, and that is option B, impedes. So देखो encourages का opposite है ना discourage, and discourage means what? impede, hurdle create करना, रोकना. So this is the correct option, right? So this is valid for contrast indicators. Next, we have support indicators. Notice signal words connecting similar ideas. Other signal words such as in other words, besides, and in addition to, also, therefore, furthermore, likewise, for, indeed, similarly, truly, and as often connect similar ideas. कुछ support indicators भी होते हैं. पहले क्या था? कंट्रास्ट इंडिकेटर्स जो कंट्रास्टिंग आइडियाज को, ऑपोजिट आइडियाज को इंडिकेट कर रहे थे. कुछ सपोर्ट इंडिकेटर्स जो कि सिमिलर आइडियाज को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि इन अदर वर्ड्स, बिसाइड्स, इन एडिशन टू. ये जब यूज हो रहे हो कहीं भी
तो ये वो सिग्नल वर्ड्स हैं जो कि आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि अगली बात भी सिमिलर है या आइडेंटिकल है. फॉर एग्जाम्पल, the treatise is concerned only with the process unique to the period in question. The treatise is concerned only with the process unique to the period in question. Therefore, now this is a contrast, this is a support indicator. ठीक है, ये किस बात को सपोर्ट कर रहा है? पिछली बात को. तो आइडेंटिकल बात होगी, इसका मतलब है आगे. तो no attempt has been made to dash phenomena dash to that era. अब यहाँ डेफिनेटली उसी वही आइडियोलॉजी अडॉप्ट होगी, वही आइडिया आएगा जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में था. तो सी वेदर शुड आई go for the first option A, include phenomena unrelated to that era, yani period in question unrelated to that era. या omit phenomena irrelevant to that era. Is it correct? No. Recreate phenomena germane to that era. Germane means relevant या pertinent. अब germane तो ठीक लग रहा है, लेकिन recreate सही नहीं लग रहा. Recreate phenomena, right? Discuss phenomena, option D, discuss phenomena essential to that era. So no attempt has been made to discuss phenomena. No, incorrect. Evaluate phenomena pertinent to that era. No, we are not evaluating the phenomena. We are, it was to concern only with the process, right? So option A here is the correct option. Option A is the more relevant option than any other option. Include, so therefore the treatise is concerned only with the process unique to that period in question. Therefore, no attempt has been made to include phenomena unrelated to that era. Right? Sense बिल्कुल clear develop हो रहा है यहाँ पे. Next. Now we have some cause and effect indicators. These words indicate that one thing causes another to occur. Right? One thing causes another to occur. Some common indicators are because, thus, therefore, for, hence, if, then, accordingly, consequently, and due to. For example, एक cause होगा फिर उसका effect होगा. Simple example, because the Senate has the votes to override a presidential veto. अब देखो cause और उसका effect क्या होगा कि क्योंकि Senate के पास वोट्स थे कि वो प्रेसिडेंशियल वीटो को ओवरराइड कर सकें. ये कॉज था. इफेक्ट क्या पड़ा? द प्रेसिडेंट हैज नो चॉइस बट टू डैश. अब इसका इफेक्ट क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट करेगा? नो. एब्डिकेट करेगा. एब्डिकेट कहते हैं गिव अप कर देने को, राइट? एब्स्टेन, एब्स्टेन करेगा. कैपिचुलेट करेगा या कॉम्प्रोमाइज करेगा? Abstain, keeping oneself away from something. Capitulate, it also gives a negative meaning. Capitulate. And the next word is compromise. So definitely compromise is a correct option, right? ना ही ऑब्जेक्ट करेगा, ना ही वो एब्डिकेट गिव अप करेगा, ना एब्सटेन कीपिंग वन सेल्फ अवे, और ना कैपिचुलेट. कैपिचुलेट कहते हैं सी और रेजिस्ट एन ओपोनेंट और अनवेलकम समवन समथिंग. तो compromise is a better option. Cause and its effect. Next point है जी, focus on signal words that help define words. Signal words पे focus करें जो कि help करते हैं words को define करने में. ठीक है. Still other signal words will give you a definition or point you to the definition of the word needed. For example,
यही वर्ड सिग्नल वर्ड्स आके आपको डिफाइन करेंगे, आप आपको उस पॉइंट तक ले जाएंगे जो कि उस वर्ड को डिफाइन कर देगा जिसकी जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, एडिटोरियल कार्टूनिस्ट्स कैन नॉट बी सक्सेसफुल unless they can dash the consciences of their audience and stir up controversy. So the options are assuage, dwarf, tweak, shield, or amuse. Now, assuage means make something less intense. Make something less intense. Whether unless they can assuage, making less intense the consciences of the audience. एडिटोरियल कार्टूनिस्ट उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक कि वो अपनी ऑडियंस के कॉन्शियंसेस को, उनके जमीर को डैश ना करें और कंट्रोवर्सी को अराइज ना कर दें. तो वेदर दे विल मेक इट लेस इंटेंस या फिर ट्वीक मतलब होता है ट्विस्ट समथिंग, ट्विस्ट कर दें उसको, समथिंग ट्विस्टिंग समथिंग. नेक्स्ट है ऑप्शन डॉर्फ. डॉर्फ मतलब होता है किसी को इनसिग्निफिकेंट बना देना, छोटा कर देना. कॉज टू सीम समथिंग स्मॉल. शील्ड प्रोटेक्ट करना या अम्यूज करना. सो डेफिनेटली इट्स क्लियर कि वो उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक वो कॉन्शियंसेस को ट्विस्ट ना कर दें, ट्वीक ना कर दें. राइट. सो अगर आप लॉजिकली चीजों को फाइंड आउट करें, लॉजिकली देखें, तो बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं राइट चॉइस को. नेक्स्ट पॉइंट है वॉच फॉर कंट्रास्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स. पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के कंट्रास्ट को देखना भी बहुत जरूरी है. Look for the words like not, cannot, never, and no. The right answer will be the word opposite to the signal word, emphasizing the contrast. So, go for the contrast between positive and negative words. ठीक है. मिसाल के तौर पे वर्ड्स हैं नॉट, कैन नॉट, नेवर, नो. राइट आंसर क्या होगा? इन वर्ड्स का ऑपोजिट, सिग्नल वर्ड का ऑपोजिट होगा जो कि कंट्रास्ट में एम्फसाइज करेगा. फॉर एग्जांपल, the chairperson was noted for not being obstinate. Not being obstinate. Obstinate किसको कहते हैं? stubborn को कहते हैं. Someone who is stubborn. सही है. तो अभी obstinate is a signal word ना, not के साथ क्या यूज हो रहा है? obstinate. तो इसका एंटोनिम जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका ऑपोजिट वर्ड करेक्ट ऑप्शन होगा. On the contrary, see, the members praise her resistance, experience, coherence, verbosity or flexibility. So if someone is very stubborn, someone is obstinate, तो उसका opposite क्या होगा? Obviously flexible. So option E is the correct option. Flexibility, right? Flexibility is the correct option. Next, negative words can change the direction of the sentence. Negative words sentence की direction को change कर देते हैं. Be alert to such negative cues and follow the direction the sentence is going in. तो इन नेगेटिव cues से अलर्ट रहें और फॉलो करें उस डायरेक्शन को जहां पे सेंटेंस मूव हो रहा है, जहां सेंटेंस जा रहा है. तो यू नीड टू चेक इट आउट कि सेंटेंस किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. द सिंटैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ग्रामर एंड लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच सेंटेंसेस एंड कैन एड इन प्रॉपर सिलेक्शन. और वो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगी प्रॉपर सिलेक्शन में. फॉर एग्जाम्पल, द रूम वॉज इन एन एडवांस स्टेट ऑफ डिसरिपेयर. द रूम वॉज in an advanced state of disrepair. Not only were the velvet draperies dashed, but they were also molted and dashed. Now, सबसे पहले तो मीनिंग्स गेस करना जरूरी है
यू नीड टू फाइंड इट आउट कि वहां पे जो मीनिंग्स यूज हो रहे हैं उनके मतलब क्या. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फाइंड आउट एनी डिफिकल्ट मीनिंग, द रूम वॉज इन एडवांस स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, दिस इज फाइन. Not only were the velvet draperies, draperies are called curtains, curtains जो पर्दे होते हैं घरों में, right? Dash, ना सिर्फ वो velvet के पर्दे dash हो चुके हैं, but they were also molted and dash, right? तो देखें क्या ऑप्शन करेक्ट है. अब ऑब्वियसली आपने ये भी देखना पड़ेगा कि कर्टन्स क्लोथिंग में आएगा ना. तो इसके लिए क्लोथ के लिए भी हो सकता है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड हो जो कि उसके लिए यूज होता हो. फॉर एग्जाम्पल, हियर यू सी ब्राइट. अगर मैं कहूँ नॉट ओनली वर द वेलवेट ड्रेपरीज ब्राइट, अगर यहाँ जबकि ऊपर क्या बात हो रही है कि इसको रिपेयर की जरूरत है रूम को, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो ब्राइट होंगे पर्दे. तो ऑप्शन ए को यहीं से एलिमिनेट कर दें. फिर गो फॉर ऑप्शन बी. दे वर द वेलवेट ड्रेपरीज ओल्ड. जो क्या जरूरी है कि कोई चीज ओल्ड हो तो उसको रिपेयर कराया जाए या उसको चेंज कर लिया जाए, हो भी सकता है. फिर आगे बढ़ते हैं, क्लीन लगा के देखें. बट दे वर मोल्टेड एंड क्लीन, सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि एक चीज क्लीन है और ओल्ड है, बट ओल्ड है तो आप उसको रिपेयर कर दें, नो, या उसको चेंज कर दें. थर्ड वन देखें, फेडेड एंड फ्रेड. ड्रेपरीज आर फेडेड, यस, दिस कैन बी अ प्रोबेबल ऑप्शन कि कपड़ा जो है फेड होता है, ड्रेपरीज फेड होते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, बाकी दोनों ऑप्शन पहले देख लेते हैं फिर इस पे आते हैं दोबारा. वेलवेट ड्रेपरीज न्यू, नॉट पॉसिबल. मैंगल्ड, मैंगल्ड के मतलब होते हैं सिवियरली डैमेज, समथिंग दैट इज सिवियरली डैमेज, बहुत बुरी तरह जो तबाह हो गई हो, मुतासिर हो गई हो कोई चीज. दिस इज पॉसिबल, बट दिस इज नॉट यूज्ड फॉर कर्टन्स, फॉर क्लोथिंग, फॉर क्लोथ्स, राइट. नेक्स्ट देखें, टैटर्ड ड्रेपरीज. टैटर्ड, बिखर जाना, बिखरे होंगे पर्दे वहां पे. एंड मोल्टेड एंड ओरिजिनल, नॉट पॉसिबल. सो ज्यादा बेटर ऑप्शन सी लग रहा है. अब दूसरा सेकंड वर्ड को भी लगा के देखते हैं. फेड आपको पता है कलर जो है वो खराब हो जाना, एंड फ्रेड, बट दे वर आल्सो मोल्टेड एंड फ्रेड. फ्रेड कहते हैं समथिंग दैट इज वॉर्न एट द एज. कोई चीज, कोई कपड़ा जो किनारे से फट जाए उसको फ्रेड कहा जाता है. सो यस, दिस इज द मोर एप्रोप्रिएट, सूटेबल एंड करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, राइट. So you need to keep in your mind multiple options, multiple things in your mind. Right choice के लिए आपको थोड़ी सी इसमें effort करनी पड़ेगी. These are one of those difficult things, difficult components जिसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन अगर ये confusing आए तो काफी डिफिकल्टी होती है इसमें. So keep it in your mind that sentence correction must be dealt tactically, right. Let's move on. Questions with two words missing should be attempted one word at a time. ऐसे questions जिसमें दो words missing हो, उसको आपने single word को पहले attempt करना है, right? चाहे वो पहला हो या दूसरा, but remember that both words must fit. लेकिन आप ये बात याद रखें कि दोनों words fit होने चाहिए. However, sometimes it is more efficient to work from the second blank first. लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बेहतर होगा कि पहले ब्लैंक को, सेकंड ब्लैंक को पहले अटेम्प्ट करें, फर्स्ट वन को ना छेड़ें. दिस इज बिकॉज इट इज इजियर टू फिल इन. क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि बाद स्टेटमेंट्स में सेकंड ब्लैंक के जरिए से आप राइट ऑप्शन की तरफ ज्यादा जल्दी अप्रोच कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डैश प्रेडिक्शंस ऑफ ग्रेटली डिक्रीज रेवेन्यूज नेक्स्ट ईयर have frightened lawmakers into dash budget reductions. अच्छा जी, प्रेडिक्शंस हुई हैं किस चीज की कि रेवेन्यू डिक्रीज होगा नेक्स्ट ईयर. इसने फ्राइटन कर दिया है, खौफजदा कर दिया लॉ मेकर्स को into dash budget reduction. Reduction is a negative word, so definitely क्या
कैसी बजट रिडक्शन होगी जब एक साइड से रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो बहुत ज्यादा बजट रिडक्शन होगी ना, इसका मतलब है, राइट। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेकंड ऑप्शन में हमें साइजेबल, माइन्यूट, नेग्लिजिबल, ह्यूज या फिर ड्रास्टिक। यानी फ्राइटेंड इज एन इंटेंस नेगेटिव वर्ड, राइट। सो डेफिनेटली वो रिडक्शन कौन सी होगी, वो साइजेबल होगी नहीं, माइन्यूट होगी, नॉट पॉसिबल, नेग्लिजिबल होगी, ये सवाल ही नहीं है। ह्यूज और ड्रास्टिक, ह्यूज और ड्रास्टिक में से कौन सा वर्ड ज्यादा इंटेंस नेगेटिव है? सो डेफिनेटली वी विल गो फॉर ऑप्शन ई। अब इसका फर्स्ट वर्ड भी फिट करके देखें, द डायर प्रेडिक्शन। डायर प्रेडिक्शन किसको कहते हैं? एक्सट्रीमली सीरियस यानी अर्जेंट प्रेडिक्शन, राइट। अर्जेंट, एक्सट्रीमली सिवियर। So yes, this is the correct option, E, right? This is the way you need to identify. And if you don't spot any signal word or you don't know the meaning of some of the choices, or if you are just stumped, quickly read each answer choice in and see which sounds best. Right? अगर कभी ऐसा हो कि आप स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं सिग्नल वर्ड को और आप किसी वर्ड के मीनिंग नहीं जानते हैं या चॉइसेस में किसी चीज के मीनिंग नहीं जानते हैं और आप स्टक हो गए किसी जगह पे, तो क्विकली रीड करें हर चॉइस को, प्लेस करें और देख लें कौन सा वर्ड बेस्ट साउंड कर रहा है। बाद दफा हम प्रोनाउंसिएशन से, बाज दफा उसकी कोहेरेंस से, बाज दफा वर्ड की कंपैटिबिलिटी से भी आइडिया लगा सकते हैं कि जी ये राइट चॉइस है या नहीं है। बाज जगह सिर्फ आप ये आइडेंटिफाई करके कि इस जगह वर्ब आना चाहिए, आप करेक्ट चॉइस आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाज जगह सिर्फ आपको ये लगता है कि यार ये किसी बंदे के लिए यूज हो रहा है यहाँ ब्लैंक, तो बंदे की क्वालिटी होनी चाहिए, तो आप एडजेक्टिव फाइंड आउट कर सकते हैं। सो समटाइम्स सिर्फ आपको वर्ड पढ़ने से भी आइडिया हो जाता है कि वेदर व्हाट शुड बी द करेक्ट चॉइस। Sometimes the last method will help you at least eliminate some of the choices so that you can take an educated guess. ये जो लास्ट मेथड आपने यूज किया एलिमिनेशन का, ये लास्ट चॉइस के जरिए से फाइंड आउट करने का, तो यानी सेकंड वर्ड को फिट करके फाइंड आउट करने का, तो इन टेक्निक्स के जरिए से आप एटलीस्ट एक एजुकेटेड गैस लगा सकते हैं। देखिए अगर कोई किसी वर्ड के मीनिंग आपको नहीं आती या किसी जगह आप स्टक हो रहे हैं किसी चॉइस में, किसी एमसीक्यू में, तो गैस करना ही है, तो एटलीस्ट देयर मस्ट बी सम सेंसिबल एंड एजुकेटेड गैस, राइट। So these techniques are going to help you out in finding out the right choice. Example देखें इसकी, many lawyers now believe that the dash of the tobacco industry is so widely dashed by the public that juries will finally be willing to convict the corporations when the cases go to jail. Now see, here you have maybe some difficult words, शायद आपके लिए difficult हो। Disseminated, disseminate कहते हैं फैले होने को। Propaganda आपको पता है, credited पता है, repute, supported, mendacity it means untruthfulness यानी झूठ, guilt और acknowledge तुम्हें पता ही है। So many lawyers now believe that the advertising of the tobacco industry is so widely disseminated by the public that is it possible कि tobacco industry is so disseminated by the public that juries will finally know? Not possible. Many lawyers now believe that the propaganda of the tobacco industry is so widely credited by the public. No. Many lawyers now believe that the repute of the tobacco industry is so widely supported by the public that juries, ऐसा क्यों होगा? फिर देखें, many lawyers now believe that the mendacity यानी untruthfulness of tobacco industry is so widely queried by the public that the juries, इस बात पे तो jury convict नहीं करेगी corporations को। Many lawyers now believe that the guilt of the tobacco industry is so widely acknowledged by the public, लोगों ने acknowledge किया इस बात को, ठीक है, that the juries will finally be willing to convict the corporation when the cases go to jail. Yes, this is the correct option. So you need to see
अगर आप गेस भी कर रहे हैं तो दैट शुड बी सम सेंसिबल एंड एन एजुकेटेड गेस। ठीक है जी, इट्स ऑल अबाउट सेंटेंस कंप्लीशन। सो इसकी आप प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये चीज मजीद बेहतर से बेहतर होगी। ये इस लेवल के इतने ज्यादा मुश्किल सेंटेंस कंप्लीशन कंपोनेंट्स आते नहीं है यूजुअली आपके पेपर में, but these techniques will definitely help you out if you have some difficult questions in your exam, right? Thank you.